Good morning, everyone. Today we have Mr. Praveen Pawar with us. He is the managing director for SPS Private Limited, and he has been doing what I would say different kinds of work, but mostly his domain expertise and interventions has been around climate change and environment. So he has been working as a tremendous force for bringing and dovetailing the social development sector as well as uh, the needs of the majority of the population. So I welcome you, Mr. Praveen, on this interview with us. Uh, and we'll discuss a lot more during the course of our discussion. Uh, I'll request you to please introduce yourself, give a brief introduction about yourself and your venture. A very good morning, Akhilesh. And first of all, would like to thank Indo Consultancy for giving me this opportunity to present myself here. And I'm quite obliged to this particular invitation. My name is Praveen Kumar Pawar. I come from Maharashtra. Particularly, my native is Sangli. Sangli is famous for its sugarcane belt. It's also famous for the seedless grapes and pomegranates. So a lot of agro-based industries are from Sangli. So I have been quite working since last 23 years in the social development aspects because my education qualification is I did a master's degree in NGO management, and ever since that I have been working as a development specialist, and particularly on water supply, sanitation, and hygiene with the quite good organizations like the World Bank. When I worked with government of Maharashtra for sometimes as consultant, and then over a period of time I worked with other institutions, and it was somewhere around 2015 I felt like since I come from a very good administrative background, because my undergraduate was in business administration, bachelor's in business administration. So I felt like we should be doing something good for the society, but at the same time, it should be profitable for farmers, because I come from a farming belt, and also small-time business people. So I've been small-time business, tiny sectors and small-scale industry business enterprises, because they have a lot of recurring expenses on certain factors. And I felt like renewable energy can be one sector. If I work, I can contribute to a large scale to these farmers and also to these small scale enterprises. So what today I will be talking about these two things where I have felt like I did a little bit good innovations in terms of contributing to the larger society. One was particularly on the solar water pump system, and the second was on the biofuel aspects. So regarding the solar photovoltaic system, my concentration was entirely on the solar water pump. I started in a stage where even in Sangli or particularly in Maharashtra, there was not much takers of solar, because nobody knew about solar at that particular point of time. Yes, there were government schemes, there were government programs running, but at the grassroots level, at the field level, there were not much of these initiatives that have taken place. तो मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बात करता हूँ. मेरा तो हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ताकि काफी सारे लोगों तक ये पहुंचा सके मैसेज. सोलर वाटर पंप सिस्टम एक बहुत बड़ा देन है समाज के लिए,
और दूसरा जो है, जो जिसपे मैंने काम किया है, वो है बायोफ्यूल सिस्टम के ऊपर मैंने काम किया। तो ये दो चीजें हैं जहाँ जो लाभधारक हो वो 100% काश्तकार हो या छोटे छोटे जो बिजनेस चलाते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, उनके लिए हो। तो मैं सबसे पहले मैं सोलर के बारे में बात करना चाहता हूँ। सोलर में मैंने सिर्फ सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम में सोलर वाटर पंप के ऊपर मैंने ज्यादा ध्यान दिया। सांगली जैसा जो शहर है या जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ काफी सारे काश्तकार है और ये गन्ने के खेती करते हैं, ग्रेप्स के, सीडलेस ग्रेप्स की खेती करते हैं, और पोमोग्रेनेट्स जो है उसका भी, अनार का खेती भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और इन लोगों के फायदे के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि काफी सारे रिकरिंग एक्सपेंस होता है, तो इसको कम करने के लिए क्या है, तो मैंने एक इनिशिएटिव कहा कि हमको अभी 2015 में रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर जब मैंने काम किया, तो काफी सारे लोगों को पता भी नहीं था कि सोलर वाटर पंप सोलर से भी चल सकता है यानी। तो उस समय हमने एक श्री सोलर वेंचर, बीकानेर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम उनके साथ कोलैबोरेशन में है, और पिछले 20 साल से उस फैमिली को मैं जानता हूँ, ये हमारे परिवार जैसे ही हैं। तो उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की है। श्री सोलर वेंचर एक बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन शुरू में था, अब आके वो आज के इसमें को कम से कम 18 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन उस जमाने में उनके पास जो सोलर वाटर पंप जो था, उनके पास वो स्पेशलिटी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उस समय काफी बड़े प्लेयर्स थे मार्केट में और नेशनल लेवल पे। लेकिन नेशनल लेवल का एमएनआरई प्राप्त करने का एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कहेंगे तो वो श्री सोलर वेंचर है। तो 2013-2014 में ही श्री सोलर प्राइवेट लिमिटेड जो है, उनको ये एमएनआरई का सर्टिफिकेशन मिला था ऑन 5 HP, 7.5 HP। और उस समय उनके पास ये भी ताकत थी कि वो 10 HP सोलर वाटर पंप भी करते थे। आज पूरे राजस्थान, वो बीकानेर के ऑर्गेनाइजेशन है, आज पूरे राजस्थान में वो कम से कम 2000 से भी ज्यादा पंप उन्होंने लगाया है। और महाराष्ट्र में हमने इसको 2015 से हमने ये स्टार्ट किया है, SPS इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा कंपनी है। और वहां से हमने शुरुआत की। यहाँ हमने सोलर वाटर पंप इसलिए हमने चिन्हित की क्योंकि जब काश्तकार को क्या प्रॉब्लम होता है, काश्तकार को बिजली का प्रॉब्लम होता है। हमारे एरिया में पानी की कमियां नहीं है, लेकिन बिजली की बहुत बड़ी कमियां है। और पूरे महाराष्ट्र में आज भी 4 दिन सुबह मिलती है बिजली, 4 दिन सुबह मिलती है और रात को 3 दिन मिलती है। तो हफ्ते में 3 दिन रात को काश्तकार को काम करना पड़ता है, और सुबह 4 दिन सुबह काम करता है। लेकिन जो खेती होती है, खेती को क्या चाहिए, पानी चाहिए, और सही टाइम पे पानी चाहिए होता है। और हमारा जो शुगर केन बेल्ट एरिया जो है, रात में जाके अगर हम खेती में पानी डालेंगे तो रात में न्यूट्रिएंट्स, जो खेती के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होती है, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होती है, उनको रात को पानी की जरूरत नहीं होती है। और वैसे तो ठंडाई होती है और ज्यादा ग्रोथ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। खेती के लिए पानी कब चाहिए, जब हम उसका लागवड करते हैं, जैसे हम रीप करते हैं, गन्ने हम लगाते हैं, उस समय वो छोटे छोटे पौध होते हैं, उनके लिए उस समय पानी काफी चाहिए होता है। और फ्लड इरिगेशन से पानी बहुत पैमाने पे पानी चलता था। और ऐसे एक कैलकुलेशन है कि 1 एकड़ खेती के लिए कम से कम 28,000 लीटर पानी एक दिन के लिए खेती के लिए चाहिए होता है, शुगर केन के लिए। सो इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ वाटर, काफी पानी लगता है। तो हमने क्या किया है कि सोलर का हमने जोड़ किया था, और सोलर के साथ साथ हमने क्या किया है कि ड्रिप इरिगेशन के साथ, क्योंकि वो पहले फ्लड इरिगेशन एक बहुत बड़ा सवाल था कि सोलर ये चल सकता है क्या, और 1 घंटे में कितना पानी दे सकता है। सोलर ही नहीं हो सकता है, अगर सूर्य ही नहीं है या सन ही नहीं होता है तो कैसे हो सकता है। ऐसे काफी सारे सवाल लोग पूछते थे। हमारे यहाँ बारिश होती है तो इनका जो समाधान में हर समय लोगों के साथ डायलॉग निगोशिएट करके उनको मैं कहता था कि यार, हमारे यहाँ ऐसी मौसम नहीं है कि 6 महीने हमको अंधेरा छाता है, या और 6 महीने हमको गर्मी होती है। हमको तो पूरे साल भर हमको गर्मी होती है। सिर्फ एक 20 दिन आप छोड़ेंगे तो काफी सारे सन का जो ये है सूर्य प्रकाश जो है हमको मिलता है।
और 20 दिन के लिए हमको जो नहीं मिलता है उस समय आपको पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वरुण देवता आपको पानी देता ही है, तो आपको पानी देने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो ये ऐसे नेगोशिएट करने के बाद कम से कम 50 लोगों तक हमने ये सोलर वाटर पंप लगाया। मैं दावे से ये कहना चाहता हूँ कि इसका छोटा मैंने स्टडी भी अखिलेश जी मैंने इन काश्तकारों के साथ किया। शुरू शुरू में काफी सारे सवाल लोग पूछते थे कि आपका क्या, लाइक अगर मैं आपसे सोलर ले लेता हूँ तो बहुत ज्यादा कीमत है, और दूसरा है कि हमारे यहाँ बिजली तो सरकार मुफ्त में देती है, आपका सोलर लगाने से क्या फायदा होगा, या हमको खर्चा ही ज्यादा होता है। तो उन काश्तकारों के पास हम बिल्कुल जाते नहीं थे, क्योंकि इनका जो मेंटेलिटी जो है वो वैसे बनाया था। तो मैंने कहा कि पॉजिटिव जो काश्तकार है उनके पास हम अगर जाके हम कहेंगे, तो हमारे यहाँ काफी सारे पॉजिटिव काश्तकार जो है वो सामने है, जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहते थे। तो प्रोडक्टिविटी इसलिए क्योंकि इन लोगों को पता था कि मुझे पानी चाहिए, और एक बार इलेक्ट्रिसिटी अगर होता है तो वो रिकरिंग एक्सपेंस होता है, हर समय उनको पैसा देना पड़ता है। अगर उस एरिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमको कम से कम डीजल से पंप चलाना पड़ता है, और डीजल तो आपको पता है कि एक दिन में कम से कम 500-600 रुपए तक जाता है डीजल का जो खर्चा। लेकिन सोलर में क्या है कि सोलर में सोलर वन टाइम एक्सपेंसेस है, हाँ कॉस्टली है, लेकिन आपको 25-40 साल तक आपको वापस देखने की जरूरत नहीं है, और 0% ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक बार आपने सोलर लगाया तो आप इट इज लाइक फिट एंड फॉरगेट, क्योंकि वो रोज चलेगा। तो उसके लिए कम से कम मेंटेनेंस है, और आपको ज्यादा ये एंड इट्स अ क्लीन हाइजीन एनर्जी। आपको वायर प्रॉपर नहीं दिखेगी, वो तार की जरूरत नहीं, वो ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती है, फ्लक्चुएशन की जरूरत नहीं होती है। ये सब जो है एक ही इंस्टॉलेशन में ये पूरा जो प्रॉब्लम्स है वो हम सोलर मीट आउट करता है, और ये पूरा क्लीन एनर्जी हमको देता है। तो हम काश्तकार को यही हम उनको कहा कि आपको जैसे हमने कैलकुलेशन किया, एक आकलन करते हैं हम शुरू में कि आपके खेती के लिए कितना पानी चाहिए, कितना प्लॉट है, और कितना पाइपलाइन है, कितना साइज का पाइपलाइन है, आपका सोर्स किधर है, वो सोर्स से आपका खेती किधर है। ये सब हमने मूल्यांकन करने के, ये आकलन करने के बाद हम सोलर को हम उनको डिसाइड करते हैं कि आपको 5 HP चाहिए, 3 HP चाहिए, या 7.5 HP चाहिए। ये हम उनको सुझाव देते हैं, और उसके अनुसार वो काश्तकार तैयार हो जाता है। लेकिन काश्तकार के मन में ये टेक्निकल चीजें तो उनके ध्यान में नहीं आती है, लेकिन उनको ये जरूरत जानते हैं कि उनको हर घंटे में कितना लीटर पानी मिलना चाहिए। तो वो हमको कहते थे कि हमको 40,000 लीटर पानी मिलना चाहिए, मेरा ड्रिप इरिगेशन है, और ड्रिप में 40,000 लीटर पानी कम से कम एक घंटे में मिलना चाहिए। तब हम क्या करते हैं कि उनको 5 HP या 7.5 HP हम फैक्टर करके उनको जब हम देते हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको जितना वो सोचते हैं उतना पानी उनको हर घंटे में उनको मिलता है। और अखिलेश जी, मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो एक बनाना प्लांटेशन एक काश्तकार थे, तो उन्होंने हमारे सोलर 7.5 HP का सोलर लगाने के बाद उन्होंने कम से कम उसी 4 महीने में उन्होंने 16 लाख रुपए का उन्होंने टर्नओवर किया पहले बार वो। और वो पहले झटके में हमारा सोलर का जो उनका जो इन्वेस्टमेंट था सोलर का वो मिठा दिया। दूसरा जो है, हमारे सांगली में गन्ने का जो बहुत वेराइटीज है, लेकिन उनका प्रोडक्टिविटी अगर देखेंगे, ये रात को और दिन में जो पानी देते हैं ना, उनके प्रोडक्टिविटी में घट जाती है। कम से कम एक ऑन एन एवरेज एक एकड़ के लिए कम से कम ऑन एन एवरेज 100 टन तो निकलना चाहिए गन्ने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 80 टन, लाइक वो 20% घटाव होता है, क्योंकि जितना पानी चाहिए वो मिलता नहीं है। लेकिन सोलर लगाने के बाद, सोलर में तो मैंने आपको कहा कि एक गन्ने की खेती के लिए फ्लड इरिगेशन किया तो 28,000 लीटर पानी चाहिए। तो हमने उस 28,000 लीटर में हमने उनको क्या सुझाव दिया कि आप ड्रिप इरिगेशन लगा दीजिए। सोलर प्लस ड्रिप काफी पानी बचत किए हैं। उनको जितना पानी चाहिए उतना ही स्ट्रीमलाइन हमने किया है, क्योंकि ये ड्रिप में चलता है, फ्लड इरिगेशन की बात ही नहीं होती है।
और उनकी प्रोडक्टिविटी में अगर देखेंगे तो काश्तकार मुझे बोलते हैं कि 100 टन से भी ज्यादा, कभी कभी 110 टन तक उन्होंने ये निकाला। क्योंकि तो जब मैंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, तो आप, क्योंकि आप फ्लड इरिगेशन तो करते हैं, तो वो कहते थे कि हमको जब हम जो लागवड़ करते हैं, वो जब हम शुगर वो जो Okay. छोटे पौध लगाते हैं, उस हम्म, समय वो पानी देना चाहिए, और वो हम्म, दिन में देना चाहिए, क्योंकि वो दिन में होता है ये प्रक्रिया, रात में नहीं होता है। तो दिन में जब जैसे ही लगाए तो उसको पानी देना पड़ता है। तो हम्म, हमारे एरिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, लेकिन मेरा खेत में इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए ये मुमकिन है कि मैं पानी दिया, और हम्म। उसकी वजह से ये प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी दिखी है। तो तो ऐसे ऐसे प्रवीण केसेस वो है और डॉक्यूमेंटेशन है। आप जैसे जो चीजें बता रहे हैं, आई एम जस्ट इंटरजेक्टिंग यू हम्म, हियर। आपने बताया कि ये जो आपने सोलर बेस्ड वाटर पंप्स लगाए हैं, किसानों के खेतों में उनकी मदद की है, उससे दो चीजें हमारी आई हैं। एक तो है, आपने उनको एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया है, हाँ जी। विच वाज अ प्रॉब्लम अर्लियर। हम्म, और दूसरी चीज है उसके साथ साथ में, जैसा आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया कि फ्लड इरिगेशन में हम करते हैं तो बहुत वेस्टेज होती है, आपने उनको ड्रिप इरिगेशन में लेके गए। सो देयर आर टू थिंग्स विच हैव बीन डन, water conservation as well as movement of the farmers to renewable energy source. हम्म, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि इसका फायदा अलग अलग किसानों को हुआ है। अलग अलग किसानों को, आई वुड नॉट से अलग अलग किसानों को लेकिन अलग अलग खेती में। हम्म, जैसे कि आपने बताया बनाना प्लांटेशन है, शुगर केन जो हमारे खेती करते हैं किसान, उसमें हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आपकी सोलर बेस्ड सिस्टम्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं, और मतलब हाउ, एक तो चीज ये है कि किसानों को छोड़कर और किसानों के साथ में आपने क्या, आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि लाइवलीहुड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवरीवन टुडे इज फोकस्ड ऑन हाउ माय लाइवलीहुड कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन। सो यहाँ पे आप इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस कर रहे हैं, साथ साथ में उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी का भी इंश्योर कर रहे हैं। हम्म, इस पॉपुलेशन को छोड़कर आपके जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं, द सोलर प्रोडक्ट्स विच यू हैव बीन डेवलपिंग और मार्केटिंग सेलिंग, व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट्स, और कौन सी पॉपुलेशन को आप प्रोवाइड कर रहे हैं? वन इज दैट, एंड सेकंड इज, आपने बीच में हमें बताया भी है कि कैसे आप उनके जो शक या सवाल होते थे कि किस तरह से हम इसको लगाएंगे, तो इस तरह के हमें थोड़ी सी और कहानियां बताएं कि कैसे आपने उन क्या क्या प्रमुख सवाल क्या आते थे और आपने कैसे उनसे डील किया। थैंक यू अखिलेश जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे आपने जो ये सही किया कि काश्तकार के अलावा आप किसने, हमने अभी तक 1 मेगावाट से भी ज्यादा सोलर सिस्टम्स, ऑन ग्रिड सिस्टम्स, हम इंडस्ट्रीज को भी लगाया है। और कम से कम कई कई 300 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। कभी बिगे इंडस्ट्रीज में 600 किलोवाट तक हम लगाए हैं। तो 1 मेगावाट से भी ज्यादा काम हमने किया है। 1 मेगावाट के 2-3 मेगावाट तो हमने किया ही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 1 मेगावाट इंडस्ट्रीज हमारे जो एरिया, सांगली एरिया में हमने बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े कंपनीज को हमने लगाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक कॉमन फैक्टर होता है, चाहे वो बड़े इंडस्ट्रीज हो या काश्तकार हो, सबको क्या चाहिए कि सोलर लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सोलर सोलर लगा सकते हैं। मैंने कहा कि जीरो मेंटेनेंस है, वो सब ठीक है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस कौन देगा उसको? आज सोलर क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि उसमें आफ्टर सेल्स नहीं, दो चीज के लिए फेल हो रहा है। एक जो है, इवन इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स, कि एक उसका प्रॉपर असेसमेंट नहीं होता है। अगर काश्तकार को चाहिए होता है कि 5-7 HP या 5 HP चाहिए होता है, तो सरकार बोलती है कि मेरे पास अभी 3 HP है, या वॉट एवर इट इज, जो उनके हिसाब से। तो पहले एक चीज है कि असेसमेंट होना जरूरी है। हर एक जो इंस्टॉलेशन होता है वो अलग प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि उनका केटरिंग अलग होता है। तो
पहले चीज होती है कि काश्तकार का समाधान करने के लिए या बड़ी इंडस्ट्रीज इसको एक कैलकुलेशन निकालना चाहिए, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो है कि आफ्टर सेल सर्विस अगर हमको करना है तो ये पूरा इकोसिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। आज सोलर में जिस समय हमने शुरू किया था उस समय टेक्निकली काफी लो थी, लेकिन आज बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत अच्छे सोलर 545 वाट तक का पैनल मिलता है, और काफी सारे इंडियन प्लेयर्स भी इस पैनल्स में हैं। तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, इंडियन प्लेयर्स भी बहुत अच्छे पैनल्स बनाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ये जो मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक यूज के लिए अगर हम कोई इच्छुक है, और काफी सारे सवाल होते हैं ना कि हमको कितना सोलर होना चाहिए, हमारे घर के लिए कितना सोलर होना चाहिए, इसका एक थंब रूल होता है। 1 किलोवाट मीन्स 4.5 यूनिट जनरेट होता है। आपको मान के जाइए, आप 4.5 भी मत पकड़ो, 4 यूनिट पकड़ो। 1 किलोवाट में हमको 4 यूनिट मिलता है। तो आपके घर में अगर ये ऐसा है कि मुझे 200 एक महीने में अगर मुझे 200 यूनिट अगर मेरा बिजली इस्तेमाल होता है एक दिन के लिए, तो मुझे कितना सोलर चाहिए। तो उसका एक कैलकुलेशन सिंपल है, आप 200 यूनिट एक महीने में अगर होता है उसको डिवाइडेड बाई 30 कीजिए, क्योंकि 30 डेज होता है महीने में, तो आ गया ये 7 यूनिट। तो एक दिन में आपको 7 यूनिट लगता है। तो 7 यूनिट के लिए आपको कितना सोलर लगाना चाहिए, मैंने आपको कहा है कि 1 किलोवाट में आपको 4 यूनिट मिलता है, तो 7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आपको 2 किलोवाट चाहिए। सो मोटा मोटी आपको 2 किलोवाट चाहिए। ये थंब रूल है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है। तो सोलर बहुत ही, और एक बार आपने लगाया, इसका सिंपल ये है कि एक बार अगर लगाया उसका वारंटी क्लॉसेस आप एक बार पढ़ के अगर करेंगे, आपको कॉस्टली है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ जीरो मेंटेनेंस है, और एक कम से कम 25 साल तक चलता है। 25 साल तक आपको प्रॉब्लम, कम से कम एक 2-3 जनरेशन तो इसने निपट देंगे, और बहुत ही एक बार आपके घर में या आपके खेत में या आपकी इंडस्ट्रीज में आपके सोलर लगाएंगे ना, आपको एक एक आत्मा से आप जुड़, वो बीज जो हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, पाणी ही पाणी ही जीवाशी निगडित आहे आणि वीज जो है ही आत्माशी निगडित है। पानी जो होता है वो जीवन से जुड़ा होता है, और बिजली जो है वो आत्मा से जुड़ी होती है। तो आपको मन नहीं लगता है कि आपको बिजली वेस्ट किया जाए। तो ये एक मेंटेलिटी बिल्ट होती है, और दैट इज सोशली इम्पोर्टेंट। एंड आज के परिस्थिति में एनवायरनमेंट, और ये जो जितने भी हम कार्बन जनरेट कर रहे हैं, हमारे घर में अगर एक बार सोलर हमने लगा दिया ना, या खेती में, या आप कॉन्शियस हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कॉन्शियस आप हो जाएंगे, आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे। हम हमेशा ध्यान में रखिए। प्रवीण, एक एक सवाल आपने बहुत अच्छा हमें बताया कि थंब रूल है 4 यूनिट 1 किलोवाट। जो आपका सोलर इंस्टॉलेशन है, आप कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम आपने लगाया है अपने घर में, वो 4 यूनिट आपकी दिन की प्रोड्यूस करता है, ऑन एन एवरेज फिगर है। अभी ऑन एन एवरेज मोटा मोटी कितना रेट जाता है अगर किसी को 1 किलोवाट जो 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो अपने घर पे लगाना है, तो उसका एवरेज फिगर क्या है? मतलब रेट्स माइट वेरी अकॉर्डिंग टू द मार्केट। रेट्स में वेरी, गवर्नमेंट का रेट दिया है। अगर आप एमएनआरई या आपके एरिया में महाराष्ट्र में मेड़ा है, आपके स्टेट में एनर्जी डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने रेट तय करके रखा है। तो यहाँ तो 48,000 में एक पूरा 1 किलोवाट का सिस्टम होना चाहिए विद इंस्टॉलेशन ऑल दोस एस्पेक्ट्स। एमएनआरई ने वो गाइडलाइंस बनाए हैं। लेकिन क्या क्या होता है ना, 48,000 में अगर करेंगे वो बेर मिनिमम है। अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे हाई एनर्जी मोनो क्रिस्टलाइन पैनल्स चाहिए, पैनल में भी वैरायटी है ना। तो जैसे हम मोबाइल खरीदना जाते हैं तो मार्केट में 10,000 का भी मोबाइल मिलता है और 1 लाख का भी मोबाइल मिलता है। तो वो रेंज आपको तय करना चाहिए। और आपको अगर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये आप आजकल क्या है कि बहुत अच्छे मार्केट में बहुत अच्छे कंपनीज है, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं कंपनी का नाम यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे अच्छे कंपनीज है जो आपको पता हो जाता है। दूसरी बात है कि वारंटी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। आजकल मार्केट में 10 साल की भी वारंटी देने के लिए तैयार है,
15 साल की भी वारंटी देने के लिए तैयार है। तो मैं पैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, पैनल तो 25 साल वारंटी है ही, हम्म, एफिशिएंसी वारंटी है ही। बट हम्म, ये जो वारंटी है, मैं इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। इन्वर्टर वायर्स तो आपको एक 3 साल 4 साल के बाद आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इफ हम्म, यू आर नॉट रफ यूजिंग इट। बट इन्वर्टर का वारंटी इस मार्केट में अवेलेबल है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स का इन्वर्टर वारंटी भी है। हम्म, अगर वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो बढ़िया, ये सब हमको ध्यान में रख के हमको सोलर करना है। लेकिन एक बार आप लगाए तो आप एनर्जी कॉन्शियस हो हो जाए। जाएगा। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया प्रवीण भाव की कैसे लगा सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाउस होल्ड के लिए तो ज़रूरी है ही, हमारे लाइवलीहुड में जैसे किसानों के साथ में है या स्मॉल इंडस्ट्रीज में हम कर रहे हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा था आपका, आपने जो आपकी वेबसाइट में भी है, आप ये पेलेट्स भी बनाते हैं। यस। उसके बारे में थोड़ा बताइए, और हाउ इट हैज बीन चेंजिंग, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स जो है इसकी, श्योर। स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। यस। तो सोलर के साथ साथ मैंने साइमल्टेनियसली ये सोचा था कि उस समय कि बायोफ्यूल के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फरसान बनाते हैं। हम हर गांव में जाएंगे तो वो कोई जलेबी बनाएगा, फरसान बनाएगा, लड्डू बनाएगा, ये छोटे छोटे। लेकिन ये लोग क्या है ना, उनका जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है फ्यूल। ओके। और इलेक्ट्रिकल फ्यूल्स नहीं होते हैं उनके पास, डीजल होता है। सो डीजल ऑपरेटेड स्टोव लगाते हैं, नहीं तो गैस एलपीजी ऑपरेटेड लगाते हैं। तो इसका भी मैंने स्टडी किया कि इन लोगों को भी कुछ ना कुछ। तो मेरा जो फ्रेंड है शेखर सालुंके और मैं, शेखर प्रताप सालुंके एंड माई सेल्फ, वी आर द डायरेक्टर्स फॉर एसपीएस इकोटेक। तो उस समय हम सोचे थे कि मैंने उनको आइडिया दिया था कि हम इन लोगों को टारगेट करना चाहिए, और ये मार्केट एक नीश मार्केट है और अनएक्सप्लोरेबल मार्केट है, और फ्यूचर में हम ये मार्केट कवर करेंगे। लेकिन एनवायरमेंटल जो चीजें हैं जो आज चाहिए, कार्बन जनरेट होता है, सो वी विल बी प्लेइंग अ वेरी गुड रोल इन न्यूट्रलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स एंड रिड्यूसिंग द पोल्यूशंस एंड आल्सो प्रोवाइडिंग क्लीन एनर्जी इन दिस सेक्टर। तो हमने उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया, इन्वेस्ट किया। तो हमने पेलेट्स बनाना शुरू की। तो पेलेट जो होता है वो एक तम जैसा होता है, जिसमें 8 mm, 10 mm, 6 mm का पेलेट होता है। और ये बनता है एग्रीकल्चर वेस्ट से। एग्रीकल्चर वेस्ट, सॉ डस्ट, जहां 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 हम वेस्ट को डालते हैं, लाइक डाल देते हैं, तो उसको अगर ग्रेन करेंगे तो उसका अगर पाउडर बना के अगर हम मिक्स करेंगे, एक अच्छा पेलेट हम बनेंगे। उसके लिए टेक्निकल प्रोसेस जो है उसमें मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। बट दिस इज 100% मेड ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। सो ये एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है, और देयर इज नो कार्बन इन इट। क्यों कार्बन नहीं है? क्योंकि जब वो बनता है और जब उसका प्रोडक्ट, वो जब प्रोडक्ट बाहर निकलता है, इट हैज लेस देन 2% ऑफ मॉइस्चर। तो अगर वुड भी देखेंगे आप, अगर समझ के मेरे पास लकड़ी है और ये कम से कम 30 साल पुरानी है, तो उसमें भी वेटनेस होता है। उसमें 50% वेटनेस होता है। जब आप लकड़ी जलाएंगे ना, आधा जलता है, आधा कार्बन दिखता है। दैट मीन्स 30-40% जलता है, और 50% तक जलता है, 50% ऐसे रखता है रहता है, क्योंकि उसका ऐश नहीं होता है। उसका ऐश बनता है, नहीं तो लकड़ी कार्बन दिखता है उसमें। और ये ब्लैक फ्यूम निकलता है, विच इज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट प्रोड्यूसेस कार्बन टू अ लार्जर एक्सटेंट। लेकिन इसमें अगर आप जलाएंगे तो आपको 1 टन भी जलाएंगे ना, आपको 100 ग्राम से भी ज्यादा आपको ऐश नहीं दिखेगा। वो पूरा, और देर इज नो स्मोक। ये पूरा जो पैलेट है वो 100% इस्तेमाल हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि उनके लिए वेस्टर्न कंट्रीज के नॉर्म्स में उन्होंने यही किया है कि जब आप कहीं भी जाओ, आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो पेलेट से ही चलना चाहिए, ब्रिकेट्स से ही चलना चाहिए। तो काफी सारे लोग पेलेट को भी टाल के, ब्रिकेट्स को भी साइड में रख के पेलेट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। बड़े 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 कंपनी है। अगर इफ आई वांट टू नेम फ्यू ऑफ देम, इट इज लाइक लुपिन है, कोको कोला है,
व्हेन दे डू द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, तो वो पेलेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको वो कार्बन क्रेडिट्स भी मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्मोक वो कार्बन न्यूट्रल होता है, नो कार्बन इज जनरेटेड। तो पेलेट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो हमने क्या किया है कि हम पेलेट के साथ हमने रुका नहीं कि हमने पेलेट बना दिया हम भेज दें। हमारा जो मकसद था, हमारा ऑब्जेक्टिव पेलेट बनाना नहीं था। पेलेट तो मैं कोई भी बना सकता है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा खर्चा नहीं होता है। उसको सिर्फ इतना है कि वो थोड़ा सा सीक्रेट जान जाए कि उसका मिक्सिंग कैसे होना चाहिए, उसका लाइक कैसे चिपकना चाहिए, जॉइंटिंग कैसे होना चाहिए, तो कोई भी पेलेट बना सकता है। लेकिन मेरा जो इम्पोर्टेंट जो है वो समाज के लिए था, लार्जर कम्युनिटीज के लिए था, हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए थे। तो हमने क्या किया कि एक हमारे जो फ्रेंड है जो पंजाब के हैं, मोहाली में, चंडीगढ़ में उनका यूनिट है, एंड ही इज एन एशडन अवार्ड विनर, रमेश निर्भोरिया, निशांत बायो एनर्जीज। उनके पास कुक स्टोव है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो आपको मैं शेयर भी करता हूँ। वो जो उसका काम क्या है, वो कुक स्टोव का, वो पेलेट से चलता है। और उसमें हमने काफी रिसर्च की है, स्टडी की है। हम आज, उस समय हमको एक भी डील करने से हमको 4 बार डेमो दिखाना पड़ता था, जाके उनके पास वो पूरा बड़े स्टोव, ये कम से कम 100 किलो का स्टोव होता है, वहां जाके उनके घर, उसकी दुकान में जाके या एरिया में जाके वो बनाने के बाद, वो 4-5 बार बनाने के डेमो देने के बाद वो ले लेता था। तो वो एक चीज था। और आज क्या है, हमारे पास 60-70 से भी ज्यादा क्लाइंट्स आए हैं। हम ज्यादा केटर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रीच बहुत छोटा है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जैसे काफी सारे अगर नेटवर्क होगा तो ये बहुत बड़े लुक्रेटिव बिजनेस है। यंगर जनरेशन के लिए अगर वो डिवोशनली अगर करेंगे, इट्स लुक्रेटिव बिजनेस भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वी आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट, सच इनिशिएटिव्स। इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा इसका भी थंब रूल में आपको बताता हूँ। ये जो चीज है, अगर हम कुक स्टोव लिया है या बॉयलर्स के फ्राइंग, कुकिंग और बॉइलिंग के लिए, जो ग्रेवी बनाना या जलेबी बनाना, कुछ तलना है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि अगर जिन लोगों के पास हमने दिया है, आज मार्केट में एलपीजी का क्या रेट है, तो एलपीजी का अगर अगर कमर्शियल एलपीजी का देखेंगे तो वो कम से कम 1200-1400 तक उसका रेट है। और वो कितने किलो का होता है, वो 14 किलो का आसपास होता है। तो मान लीजिए कि एक ऑन एन एवरेज में 1300 रुपये पकड़ता हूँ, ठीक है। सो 1300 रुपीज 1 एलपीजी डिवाइडेड बाई 14, क्योंकि 14 किलो, तो 93 रुपीज आता है। 1 kg of LPG is 93 rupees in the market. उसके अगेंस्ट में अगर पेलेट दे देता हूं, तो 1 किलो एलपीजी के लिए मेरा इक्विवेलेंट पेलेट है 2.5 kg ऑफ पेलेट्स। 1 किलो पेलेट में 14 रुपए में देता हूं, तो हमको 2.5 किलो एक केजी को बराबर करना है। तो 2.5 kg इंटू 14 अगर किया तो 35 रुपीज ही आता है। अरे एलपीजी इज 93 रुपीज। आज डीजल का क्या रेट है? आज डीजल का कम से कम आपको उसी के आसपास 90 रुपए के आसपास ही रेट है। सो नियरली 90 माइनस 35 रुपीज, यू आर सेविंग 55 रुपीज। प्रवीण भाऊ, आपने जो ये किया, आई वाज जस्ट चेकिंग द कमर्शियल गैस सिलेंडर वाला जो रेट है 16 to 19 kgs का, it is being sold at 2100. It has increased in the past month. So 2100 divided by 19, it is 111 rupees. Right. So you are saving more than. So you are saving almost 60% of energy. और मैं ये ऐसी हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 7 साल से मैं कर रहा हूँ। बहुत बड़े बेकरीज सांगली, कोल्हापुर या बेलगाम तक हमारे पास आया है। तो इस एरिया के जो बेकरीज है, फरसान मेकिंग यूनिट्स है, ये लोग हम, और जो हमारे यहाँ जो वो ब्लैक दाल बनता है अक्का मसूर, जो ग्रेवीज बनता है ना, ऐसे होटल्स हमको अप्रोच करते हैं और हमको ये स्टोव्स मांगते हैं।
लेकिन हमने क्या किया है कि हमने इंक एंड पेन प्रिंट स्ट्रेटेजी, हमने प्रिंटर एंड इंक स्ट्रेटेजी हमने अपनाया। इन काश्तकारों को, ये जो छोटे छोटे लोगों को हम इन्वेस्टमेंट करने नहीं देते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बर्नर्स होता है, काफी इन्वेस्टमेंट किया होता है। हम क्या कहते हैं कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं और एक 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं और उनको वो स्टोव दे देते हैं। जिस दिन में उनको स्टोव नहीं चाहिए, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम वापस करेंगे और ये स्टोव लेके हम दूसरे जगह पे दे सकते हैं। राइट, राइट। हमका एक ही कंडीशन है, हमारा पेलेट उनको लेना चाहिए। हाँ। तो ये उनके पास भी, उनका भी बर्डन नहीं होता है, और उनको कम से कम, अभी आपने बताया 55 रुपीज कहाँ, ये 1100 रुपये कहाँ, 111 रुपये कहाँ है, और 35 रुपये, तो 76 रुपीज दे आर सेविंग। सेविंग, And if ट्रू, you see with diesel, they are saving almost 55 rupees. ट्रू। And absolutely, एक आपने एक छोटा कमरा अगर लिया, इवन इफ इट इज 5x5, क्योंकि 10x10 मिलने का, आप किसी जगह पे जाएंगे और छोटे छोटे जो, जहाँ भजिया भुजिया ये सब तलते हैं ना, तो इनके स्टॉल देखेंगे तो बहुत छोटा जगह होता है। ट्रू। वहां भी आप 100 डिग्री, 150, 200 डिग्री तक आप ये हीट दे सकते हैं, और आपको आसपास भी आपको ये नहीं लगेगा, हीट नहीं लगेगा। अगर उस स्टोव को बाहर से छुआ भी आपको गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी लगेगी, क्योंकि वो सीमेंट, फायर सीमेंट से बनता है। और बहुत बड़ा सिस्टम है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दे दूंगा। और हमने इसमें इनोवेशन क्या किया है कि काश्तकार को पता नहीं होता, लाइक सॉरी, ये जो छोटे छोटे ट्रेडर्स को पता नहीं होता है ना कब कब पेलेट डालने का, ट्रू। क्योंकि, तो हमने इसमें हमारे इनोवेशन जो है एसपीएस इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड का, कि हमने एनर्जी कंट्रोल किया है। लाइक उन लोगों को अगर 80 डिग्री फ्लेम चाहिए, तो वो 80 डिग्री फ्लेम, वो वहां वो टेम्परेचर दिखता है, हमने टेम्परेचर से एडजस्ट किया है। और एक 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 बॉक्स आता है जिसमें 80 डिग्री दिखता है, और उसको जोड़ दिया हमारे फीडर से, ऑटोमेटेड फीडर होता है। और जिस समय उसको लगता है कि 80 से कम 70 नीचे आ गया और फ्लेम घट रहा है, तो उसको तो 80 चाहिए, तो 80 में हमने लॉक कर दिया, तो वो फीडर चालू हो जाता है 80 तक, उसके बाद बंद हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म, जो जिसको 80 चाहिए तो 80 में लॉक किया सकता है, जिसमें 250 डिग्री तक चाहिए तो 250, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये एफिशिएंसी भी, हम रोज ना रोज कुछ ना कुछ इनोवेशंस करते आ रहे हैं। तो ये काश्तकारों के लिए भी, सॉरी, ये छोटे छोटे ट्रेडर्स को भी फायदा है, और आगे जाके हमारा मार्केट रीच हम ज्यादा, क्योंकि हम बहुत छोटे इंडस्ट्रियल इसके विचार में सोचते हैं, हम तो वी डोंट मेक अ बिग टर्नओवर, लाइक हमारे, और बड़ा भी करना नहीं चाहिए। ऐसे इंडस्ट्रीज को केटर करना है तो 1-to-1 इंटरफेस होना चाहिए, तो ये बल्क मार्केटिंग नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मेरा एक ही चीज है कि इस एरिया में काफी सारे लोग, जो तरुण यूथ है, इसमें आना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए, और इसको अपनाना चाहिए अपने एरिया के लिए। तो कम से कम अगर करेंगे, क्योंकि जब हम सोचते तो ये जब लगाया तो हमारे जो फ्रेंड था शेखर, जो डायरेक्टर है, तो वो सोचते कि हम पूरे महाराष्ट्र कवर करेंगे। नहीं, हमने हमारे शहर और पास 2 शहर, कोल्हापुर और बेलगाम, से ज्यादा हम कवर नहीं कर सकते। वो कोल्हापुर और बेलगाम में भी एक दो क्लाइंट ही है। तो आप सोच ले सकते हैं कि हमारे एरिया में अगर हम केटर करेंगे तो ये बहुत बड़ा अच्छा लुक्रेटिव बिजनेस भी होगा, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी होगा। अच्छा प्रवीण भाव, एक आपसे सवाल है कि आपने बताया कि आपका ये थॉट भी है कि और भी जो हमारे यूथ हैं वो इस काम को समझे और आगे लेके जाए। आपका खुद का एक्सपीरियंस था, आपने सीखा, और उसके बाद में आपने ये सेटअप किया। साथ में मेरा मानना है कि हर इंसान की सोच होती है, आपकी एक सोच थी और आपने उस तरह की चैलेंजेस देखी हैं ऑन फील्ड काम करते हुए, या आसपास घूमते हुए, जब भी आपका रहा होगा। लेकिन आज का अगर यूथ, उसको आप क्या टिप्स देंगे, कैसे शुरू करें इफ दे वांट टू contribute the way you have been doing? It will take time, but where is the first step for our youth to start and engage? Okay. I would like to say for our youth, there are two things.
One is if you get into any renewable energy, one basic thing which is required from you all is commitment. एक कमिटमेंट होनी चाहिए है? ऐसा नहीं कि उसमें बिजनेस है तो करेंगे बिजनेस और 2 साल में करूंगा उसके बाद चला जाऊंगा, ऐसा नहीं चलता है. क्योंकि सोलर में बड़े मार्केट, आज सोलर की खराबी इसलिए हुई कि ऐसे जो लोग जो आए हैं जो बिजनेस कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके वजह से ये मार्केट शॉर्टर टर्म में खराब हुआ. लॉन्गर टर्म में तो एश्योर्ड है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज भी है वो इंश्योर कर रही है. लेकिन आजकल के यूथ को ये सोचना पड़ेगा कि इस सेक्टर में काफी पोटेंशियल है. और इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो जितने मैंने बताया है, उससे भी काफी सारे कुछ काम हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया है. बट दिस इज ऑल वॉट एवर वर्क विच इज बीन डन इन आवर कंट्री इज जस्ट इन अ फिंगर टिप, लाइक इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं ना. अभी काफी कुछ काम वी वांट टू मीट 3 बिलियन गीगावाट एंड ऑल दोस बड़े बड़े चर्चे आज हो रहे हैं. तो और बायोफ्यूल्स में तो काफी काम ही नहीं हुआ है. So there is a big potential, what I'm trying to say. So tap those potential. And इसमें investment थोड़ा फार है. ये बायोफ्यूल पेलेट्स का अगर मैन्युफैक्चरिंग भी यूनिट लगाना है तो it will be like around 20 lakhs, 25 lakhs, including a shed, small time shed, land and this, space and the machinery. So and don't think. Second thing is youth should come here with absolute developing the business and not look for subsidies. Government subsidy देगी या नहीं देगी, don't look from subsidy point of view. Look from your profitable point of view. क्योंकि सब्सिडी के अगेंस्ट आप काम करेंगे तो मेंटालिटी या पर्पस इटसेल्फ डिफीट हो जाता है. सब्सिडी आपको जब मिलेगा उसका फायदा ले लो, बट योर पर्पस शुड बी ऑब्जेक्टिव. योर ऑब्जेक्टिव, यू शुड बी ऑब्जेक्टिवली सीइंग व्हाई यू आर एंटरिंग दिस मार्केट. तो पहले चीज है कि कमिटमेंट होनी चाहिए. और अगर काफी सारे जो लोग हैं मेरे जैसे, वी गिव टिप्स टू या गाइडेंस टू, मेरे पास काफी सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स भी आते हैं और पूछते हैं कि क्या करना है, तो उनको मैं गाइडेंस देता रहता हूँ. तो ऐसे गाइडेंस हमारे समाज में काफी सारे जो लोग हैं जिन्होंने काम मेरे जैसे काम किया है, there is lot of people who are available. Get their guidances. आपको टाइम टू टाइम आपको अगर वो उन लोगों का जो टिप्स है या गाइडेंस है अगर करेंगे तो यू विल गो इन द राइट डायरेक्शन. क्योंकि मार्केट में जो चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल मार्केट जो सिस्टम्स है अभी उससे बाहर आके हमको नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज और इसमें हमको जाना, लाइक वी नीड टू टेक दोस कॉल्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जीज एंड ऑल दीज सेक्टर्स ना. तो उसके लिए हमको बहुत बड़े पैमाने पे सोचना चाहिए. अभी मैंने जो कहा कि सोलर है या ये बायोफ्यूल्स है, इससे अलावा काफी सारे रिन्यूएबल सिस्टम्स भी मार्केट में अवेलेबल है. हमारे पहाड़ी एरिया में जो बिजली नहीं मिलती है तो उनके लिए छोटा डोमेस्टिक यूनिट्स भी आप तैयार करके लोगों को केटर कर सकते हैं. तो ये कमिटमेंट के साथ अगर जाएंगे तो आपको गाइडेंस देने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दिस MNRE इज ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल टाइम क्रैश कोर्सेस. 3 दिन का कोर्स है, 1 हफ्ते का कोर्स है जो सिखाते हैं कि ये सोलर कैसे ऑपरेट होता है. तो आपको टेक्निकलिटीज भी वहां सीखने मिलता है. तो ये 4-5 दिन का अगर कोर्स आप करेंगे, और वो भी मुझे लगता है कि मुफ्त में वो कोर्स है बाय द मिडकॉन एंड काफी सारे जो इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होती है ना, दे कम अप विद दीस कोर्सेस. तो वहां जाके अगर अटेंड करेंगे तो आपको एक लीड मिल जाएगी कि सोलर का क्या है, व्हाट इज द टेक्निकलिटीज. And anybody can do this solar type of a business, photovoltaic business, which is very lucrative and also, but it needs commitment. आज हमको क्या है कि बिजनेस के एंगल से देखना चाहिए जरूरत, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस देना हमारे पास वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. लोगों का मन जीतना भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है. क्योंकि आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वो काश्तकार होगा या छोटे बिजनेस होगा, आप उनको अगर देंगे भी और मार्केट से बाहर हो जाएंगे ना, तो वो लोग कहाँ जाएगा, ऐसे बंद पड़ के वो रह जाएगा. तो उसको सतत चलाना चाहिए. तो उनको भी आपकी जरूरत है, आपको भी किसी भी अच्छे बिजनेस की जरूरत है. एक एथिकल अप्रोच रखनी चाहिए हमें जब हम एथिकल अप्रोच.
एक एथिकल अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि दीज आर ऑलरेडी वल्नरेबल सेक्शंस, आई वुड से, इन द बिजनेस कम्युनिटी, जहाँ पे छोटे स्केल का बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क ज्यादा है, क्या कहते हैं, कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एक हद तक सीमित होती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप कमिटमेंट के साथ में जाते हैं, एक एथिकल अप्रोच के साथ जाते हैं, सो वो लॉन्ग टर्म में उनके लिए भी फायदेमंद है और आपके लिए भी फायदेमंद है जो बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं। इसी नोट पे आई वुड लाइक टू एंड दिस इंटरव्यू. इट वाज अ वंडरफुल, आई वुड से, डिस्कशन विद यू. यू यू टोल्ड अस, आई वुड से कि एक आपने पूरा कैनवस दिखाया रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर सिस्टम का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स किस तरह से आप डेवलप कर रहे हैं, and in the end you rightly concluded how our youth can take it up. You've been telling during the interview also, during the discussion, कि कैसे जरूरत है यूथ की आने की, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये आइडियाज जो हैं ये और फैलने चाहिए. It should not be limited to 10 people doing or 20 people doing. More and more people in different regions should be taking it up. I thank you, Praveen Bhau, for your time and giving us wonderful insight into the renewable energy systems work you have been doing in the sector. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much.